اگلا اسٹال ہے جی سی فوڈ چکوال کا، اور جتنا بھی آپ زیتون دیکھ رہے ہیں ہمارے خطے پوٹھوہار میں، وہ سارا ان لوگوں کے مرہون منت ہے۔ تو وسیم بھائی کیسا وقت گزرا ہے جناب؟ جی سر الحمدللہ، مجھے یاد ہے آپ بھی تھے 2016 میں ہم نے ایک چھوٹا سا فیسٹیول کروایا تھا، چند ایک لوگ تھے، ایسی بات ہے۔ تو الحمدللہ اب ہر سال ہی فیسٹیول ہو رہا ہے، کارواں بنتا جا رہا ہے، اب دیکھیں 150 اسٹال ہے سر، بہت خوشی ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے۔ جب پہلے پودے آئے تھے 91 میں ہمارے پاس، ہمارے سائنسدانوں نے ریسرچ کی سر، اس پہ کام چلتا رہا، پھر 2010 میں الحمدللہ ہمیں اچھے سائنسدان مل گئے، جس وجہ سے ہمارا پروجیکٹ بہت آگے چلا، الحمدللہ ریسرچ ہوئی، اس میں پھر R&D ہوئی اور ورائٹیز آئیں۔ پھر 2016 میں ہمیں سر گورنمنٹ نے پروجیکٹ دے دیا اولے ویلی کا، انہوں نے کہا کہ آپ پورے پٹھوار کو اولے ویلی کر دیں، ایسی بات ہے، کیونکہ ہم نے ان کو آئل نکال کے ہر چیز کر کے دے دیا تھا، وہ مطمئن تھے بھی یہ کر لیں گے۔ الحمدللہ بہت خوشی ہوتی ہے یہ چیزیں دیکھ کے، ہم نے یہ چیزیں کر لی سارا الحمدللہ۔ اور دیکھیں ہم نے اولیو کی تاریخ کو بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جی، کیا بات ہے جی، یہ ہماری جو ہے نا خوش قسمتی ہے کہ اولیو کی ہسٹری پاکستان میں بنتے بنتے ہم دیکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہر سال مزید آگے بڑھ رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے انشاءاللہ سر۔ ہمارے پاس 86 ورائٹیز ہیں، ہم نے 10 ورائٹیز اور منگوا لی ہیں۔ اچھا کون سی ورائٹی ہیں پہلے میرے ناظرین کو ہارڈ کلائمیٹ کے لیے سر، اور 10 ورائٹیز منگوائی ہیں الحمدللہ۔ اب ہم ان پہ تھوڑا سا ریسرچ کریں گے، امید کافی ہے کہ نیکسٹ 5-7 سال تک فارمر کو وہ بھی پرووائڈ کریں سر۔ لیکن جن پہ آلریڈی کام ہو رہا ہے ان کا نام بتا سکتے ہیں؟ ان کا یہ دیکھیں سر، عربی کینا ہے جی سر، مینزنیلا ہے، صحیح، یہ گوہر ہے سر، باری زیتون 1 ہے، باری زیتون 2 ہے، ارلک ہے سر، کملالی ہے، چتینا ہے سر۔ یہ ورائٹیز آلریڈی الحمدللہ یہ 10-12 ورائٹیز بہترین فروٹنگ کر رہی ہیں زبردست پنجاب میں۔ ہم نے 20-22 کے قریب سر ورائٹیز رجسٹرڈ کروا لی ہیں۔ اس کے بعد سر اب ہم یہ دیکھیں، یہ سلائسنگ ہم کر کے دے رہے ہیں اچھا، یہ انسٹیٹیوٹ سے سر، ماشاءاللہ فروٹ لے آتے ہیں ڈیلی فارمر سر، 1 سے 2 ٹن ان کی گٹھلی بھی نکل جاتی ہے اور سلائس بھی بن جاتے ہیں سر۔ واو گریٹ، یہ پرائیویٹ سیکٹر سر سارا ہی وہاں آ کے جو اچھا یہ ہمارے پٹھوار کا ہے؟ پٹھوار کا ہے، کیا بات ہے جی، زبردست زبردست۔ فارمر کی کوئری ہوتی ہے کہ فروٹ کون سا سر، یہ فروٹ پڑا ہے، ہم اسے دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد سر یہ دیکھیں گورنمنٹ نے سر ہمیں کچھ 7 ارب کا منصوبہ دیا ہے نیا، اچھا اس میں ہم زیتون لگوا رہے ہیں سر، سبسڈی پہ ہم 58,000 روپے فارمر کو دے رہے ہیں، واو آئیں زیتون لگائیں۔ کیا بات، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم سر بنجر زمین جو ہے جو غیر آباد ہے ہم اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، جو آلریڈی کاشت ہو رہی ہے سر ہم اس کو نہیں چھیڑنا۔ اور دیکھیں سب سے بڑا جو آپ لوگ کام کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک کو جو درپیش مسئلہ ہے کلائمیٹ چینج کا، جی سر، اس کو ایڈریس کر رہے ہیں زیتون لگا کے۔ جی سر، کیا بات ہے جی، زبردست۔ اس کے بعد سر یہ کاوا دیکھیں، یہ مدثر بھائی ہیں ہمارے بھاولپور سے، بالکل جی، ان کی کارستانی ہے یہ، مشورہ دیا ہے بھی آپ کا اگر فروٹ کا ایشو ہے تو آپ پہ آ جائیں سر۔ صحیح بات ہے، ہم لوگوں کو انشاءاللہ دودھ والی چائے سے نکال کر کاوے پہ لے آئیں گے، اس کے بینیفٹ بہت زیادہ ہیں۔ ناظرین چلتے ہیں نا مدثر بھائی کے پاس، ان کی پروڈکٹس بھی آپ کو دکھائیں گے۔ تو جناب تھینک یو، بڑی مہربانی، خوش رہیں، جزاک اللہ، تھینک یو۔ آپ چلتے ہیں ناظرین آگے۔ السلام علیکم، ہم گلگت سے آئے ہوئے ہیں اور ہمارا ادارہ MARC ماؤنٹین ایگریکلچر ریسرچ سینٹر سے ہم آئے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ ہم نے اپنے بہت سارے پروڈکٹس ڈسپلے کیے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیوی ہے، یہ گلگت کا۔ اچھا مجھے اس کا نہیں تھا علم نا کہ GB میں بھی کیوی کاشت کی جا رہی ہے ماشاءاللہ۔ تو اس کے باغات کس جگہ پہ؟ جگلوٹ میں؟ جگلوٹ میں، بالکل۔ اچھا ہم لوگ وزٹ کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ آ سکتے ہیں، MARC آپ وزٹ کریں، آپ کو ماشاءاللہ دکھائیں گے، زبردست۔ اس کے بعد ہمارے پاس کچھ پکلز، اولیو ہمارے پاس اس کی پروڈکشن اس سال ہوئی ہے تو ہم نے اس کے پکلز بنائے ہیں جو۔ اچھا اولیو آپ کے ہاں بھی ہے؟ بالکل۔ اچھا کس جگہ پہ، کون سے شہر میں؟ پورے GB میں 8000 پلس پلانٹس ہم نے لگائے ہیں ماشاءاللہ۔ تو جو فروٹنگ پہ ہے وہ کتنے ہیں اور کون کون سے ایریا میں ہے؟ چونکہ یہ نیو پلانٹ ہے گلگت کا، تو اس لیے اس کی فروٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنی اس کی فروٹنگ ہوئی ہے اس کے ہم نے پروڈکٹس بنائے ہیں، جیسے کہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ناظرین اکرام لہسن اور آئل دونوں کو مکس کر کے ہم نے، یعنی آپ نے نا دیسی ٹچ دیا ہے نا، وہ ضروری ہے، بالکل۔ اچھا کیا بات ہے، کوئی کیمیکل ہم نے یوز نہیں کیا ہے۔ گریٹ۔ اور یہ پرسیمن ہے جی، یہ بھی آپ کے ایریے کا ہے؟ جی جی ہمارے ایریے کا، ماشاءاللہ زبردست۔ اور اس کے بعد یہاں پہ لیمن گراس ہے، اور یہ
जैतून के लीफ मिक्स करके एक हमने टी पे बनाया, थाइम बनाया, थाइम के ये साथ थाइम को इसको मिक्स किया ऑलिव के साथ। अच्छा जी, हाँ। जबरदस्त। इसकी आप ग्रीन टी बना के यूज कर सकते हैं जो बीपी के लिए और स्किन केयर, बाकी वेट लॉस वगैरह के लिए ये आप यूज कर सकते हैं एज ग्रीन टी। माशाल्लाह। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास किलाओ है। किलाओ, ये हमारे गिलगित हम का खाते हैं इसको ना, ये बहुत टेस्टी है ये। ट्रेडिशनल। जी जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। ये देखें, यहाँ से नाज़रीन आपको अंदाज़ा होगा, ये अखरोट है बेसिकली। जी जी, अखरोट को खुबानी और अंगूर के शीरे में डिप करके वो जी बिल्कुल माशाल्लाह। और ये बादाम भी जीपी का है नाज़रीन, और अखरोट भी बिल्कुल ज़बरदस्त। तो वैसे कौन सा बेस्ट टाइम है जब मैं आपके इदारे को विज़िट करूँ? आप जब भी आए, हमारे पास पूरा हर सीजन में होते हैं ना। अच्छा। लेकिन अब जब फ्रूटिंग का सीजन हमारे पास जून ठीक रहेगा? जून जुलाई में। जून जुलाई में। चलें नाज़रीन, इंशाल्लाह हम ज़रूर जाएंगे, आपके इदारे की जितनी भी ख़ाहिश है वो आपको अपने पाकिस्तान को दिखाएंगे, दुनिया को दिखाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और अगर ये कुछ कोई बंदा ख़रीदना चाहे तो आप लोग सेल भी करते हैं इनको? बिल्कुल, तो इसको अभी सेल करते हैं, लिमिटेड है हमारे पास, इतना ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है। स्टॉक ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लिमिटेड स्टॉक है, तो मार्केटिंग भी हमारी हो जाएगी और साथ में हम ये जो है ना। तो कैसे खरीदें? कोई नंबर वगैरह है तो आप बता सकते हैं? ये नहीं है सर नंबर हमारा। ये हमारा इदारा है माउंटेन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, ये पीआरसी के अंडर है। ओके गिलगित में। नहीं, मेरा मतलब ये कि अगर कोई खरीदना चाहे तो कैसे खरीदेगा आपसे ये इस तरह? अब हमारे इदारे से डायरेक्ट। अच्छा, वो इदारे से। बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह जी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अब बारी आती है जी NTHRI के स्टॉल की, और तकरीबन 2 महीने पहले मैंने विज़िट किया था, उस वक्त इनसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। तो हुज़ूर बताइएगा मेरे नाज़रीन को ऑलिव के बारे में, कहाँ तक आप लोग अभी पहुँचे हैं, काम कर रहे हैं? माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद रहमान है और मैं एज ए साइंटिफिक ऑफिसर काम करता हूँ। ऑलिव PRC का सब स्टेशन है, NTHRI शिंकारी मानसेरा। और उधर जो हमारा PSDP ऑलिव का प्रमोशन ऑफ ऑलिव कल्टिवेशन ऑन कमर्शियल स्केल इन पाकिस्तान, इस प्रोग्राम का एक कंपोनेंट है। और उसी कंपोनेंट के तहत हम हज़ारा डिवीज़न में, पर्टिकुलरली जो हज़ारा डिवीज़न के 6 डिस्ट्रिक्ट है, इसमें डिस्ट्रिक्ट हरीपुर, डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद, मनसेरा, बडग्राम, तोरगर, कोहिस्तानापुर एंड लोअर, इन सारे डिस्ट्रिक्ट में हम ऑलिव प्लांटेशन के ऊपर, माशाल्लाह, ठीक है। इसके बाद ऑलिव ग्राफ्टिंग, जो हमारे पास वाइल्ड ऑलिव ट्रीज़ है उसको हम ग्राफ्टिंग के ऊपर लेके आ रहे हैं, मतलब कल्टीवेटेड के ऊपर, ठीक है, कि वो कल्टीवेटेड हो। उससे हम इतना प्रोडक्शन नहीं ले सकते जो उसका पल आता है या उसका जो हम एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका तकरीबन 5-6% ऑयल आता है। अगर आप इसको कल्टीवेटेड पे ले आते हो तो ये 18 से 20%, 20-22% तक जाता है। तो हम उसके ऊपर भी काम करें। कैपेसिटी बिल्डिंग, फार्मर का ट्रेनिंग करते हैं, एंड पर्टिकुलरली जो हमारा मेन फोकस है दैट इज़ ऑलिव नर्सरी प्लांट्स प्रोडक्शन। पूरे पाकिस्तान में अगर आप देखेंगे जो NTHRI शिंकारी में हम ऑलिव नर्सरी प्लांट्स प्रोडक्शन करते हैं, पूरे पाकिस्तान में किसी और जगह नहीं है। सही। तो डॉक्टर साहब, फार्मर इजीली आपसे परचेज कर सकते हैं प्लांट्स, या कोई आपका कोई स्पेसिफिक कोई एक मैकेनिज्म है कि किस तरीके से आप फार्मर को? सर ये बिल्कुल इजी है। हमारा ये नेशनल एक वेबसाइट भी है www.pakolive.com, उसके नाम से भी, मतलब जब आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे, उधर जाके जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है प्लांटेशन के लिए, उधर से भी आप डाउनलोड करके उसको फिल करके कंसर्न सेंटर आप भेज सकते हैं। दूसरा हमारा कांटेक्ट नंबर वगैरह भी वो उसकी भी अवेलेबिलिटी है साइट पे, तो कांटेक्ट नंबर से भी अगर कोई हमें रब्ता करते हैं थ्रू व्हाट्सएप, हम उसको प्लांटेशन फॉर्म भेजते हैं, वो फिल करके हमें भेजते हैं। और जैसे हमारे पास पौधे अवेलेबल होते हैं पर्टिकुलरली एंड स्प्रिंग, जनवरी से लेकर अप्रैल तक, और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इन्हीं सीजन में हम फिर पौधे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, इसमें जो डॉक्यूमेंट चाहिए प्लांटेशन में, एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, एक इकरारनामा है, उसमें ये सारी चीज़ें कि ये पौधे हमें जो भी डिपार्टमेंट होता है, जो भी महकमा होता है, उसी महकमे ने हमें सब्सिडाइज रेट पे दी है। टेक्निकल असिस्टेंट वो देंगे, बाकी मैंने पौधों का ख्याल रखना है, उखाड़ना नहीं। ये सारी चीज़ें जो इकरारनामा है ये स्टाम्प पेपर पे प्रिंट करना है, साथ NIC एक फोटोकॉपी लगा लेनी है, और जिधर आपने लगाना हो उस ज़मीन का कोई डॉक्यूमेंट, कोई पर्त वगैरह हो। तो ये लाजमी इसलिए होता है कि हमें पता चले कि हाँ
ये जो बंदा पौधे लेके जा रहे हैं ये ज़मीन इन्हीं का अपना ही है, सही, ठीक है। तो इस सही। मकसद के लिए हम ये सारा प्रोसेस कर लेते सही। और जो हम पौधे दे देते हैं, पिछले साल का रेट एक पौधे का एक्चुअल जो कीमत है वो 282 रुपये है, लेकिन इसमें 67% गवर्नमेंट सब्सिडी है ठीक और है। 33% फार्मर शेयर है। 33% एक पौधे के हिसाब से 93 रुपये इसमें। माशाल्लाह, इतना जी, जी। ज़बरदस्त कीमत है आपकी माशाल्लाह। तो जी, सर। कौन कौन सी वैरायटीज़ पे आप लोग काम कर रहे हैं अच्छा। केपी में? जी सर, पूरे कैपी में तो वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा है, जी, जी। लेकिन जो मोस्टली सक्सेसफुल है जो। सक्सेसफुल है और हम उसकी इवाल्युएशन करते हैं वो राउंड अबाउट 18 वैरायटीज़ है पूरे हज़ारा डिवीजन में जिसको हम Okay. इवाल्युएट करते हैं। उसमें आयल वैरायटीज़ भी है, डुअल पर्पस के भी है, मोस्टली पिकल पर्पस के लिए जो टेबल अच्छा। पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है वो वैरायटीज़ भी है। सही। तो हमारे पास मोस्टली हम रिकमेंड करते हैं हज़ारा डिवीजन के जितने भी फार्मर्स हैं जी। जो सुन रहे हैं, हम उनको ये कहते हैं कि आप लोगों ने कंसर्न सेंटर जो है जी। हज़ारा डिवीजन के लिए वो एंटी चेरिशिंग कैरी है, जी। प्लांटेशन के हवाले से आप लोगों ने अप्रोच करने हैं नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट शिंगारी, उधर से आप लोगों को वो वैरायटीज़ मिलेंगे जो हज़ारा डिवीजन में अच्छा परफॉर्म कर सके, उसका प्रोडक्शन अच्छा हो। ओके। हाँ। इसके अलावा हज़ारा डिवीजन से हट के कौन कौन से केपी के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आप रिकमेंड करते हैं वो लोग इसको काश्त करें? पूरे केपी में मालाकंड ये ऑलिव जो है जी। पूरे पाकिस्तान में जिधर भी आप इसको लगाएंगे ना, थोड़े बहुत ज़्यादा एरियाज है जैसे मतलब सिंध प्रोविंस के जी। उधर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा जाता है तो उधर नहीं काश्त कर सकते। जी, जी। बाकी इसके लिए जो फिजिबल एरियाज और प्रोविंसेस है पाकिस्तान में, ऑन टॉप बलूचिस्तान है, उसके बाद केपी है, केपी है, उसके बाद पोठोहार है। पोठोहार रीजन है और जीबी और एजे के इसमें भी ये अभी आगे जा रहे हैं। तो माशाल्लाह। हमारा कोशिश ये है हम तो हज़ारा डिवीजन को फोकस है क्योंकि जी। उधर हमारा कंपोनेंट है, बाकी जो प्लेन एरियाज है केपी के पिशावर मर्दान चारसदा ये सारे अप्रोच कर रहे हैं तन्ना फार्म। माशाल्लाह। तो केपी में हमारे दो ही कंपोनेंट है जो हम सही। ऑलिव को डील करते हैं। तो आपके जो फ्रूट है हज़ारा डिवीजन का उसकी परसेंटेज कितनी है ऑयल की ना उसमें जी, जब जी। आप एक्सट्रैक्ट करते हैं तो? अच्छा सर, इसमें दो ही चीज़ें मैं मेंशन करूंगा। जी। एक होता है जो कल्टीवेटेड वैरायटीज़ है जी। जो ऑलरेडी मतलब हम पौधे प्रोड्यूस करते हैं और जी। उसको डिस्पर्स करके फार्मर जब इसके प्लांटेशन करते हैं जी। ये जब बेरिंग पे आ जाते हैं जो कल्टीवेटेड वैरायटीज़ है मोस्टली उसका जो परसेंटेज है दैट इज़ 12 to 15 and 16%। मैंने आपसे जो पहले मैंने बात की वाइल्ड की, जो हमारे पास वाइल्ड ऑलिव ट्रीज हैं ये बलूचिस्तान में भी है, हज़ारा में भी जी। है, मालाकंड डिवीजन पोठोहार में भी है, पोठोहार में भी है। बिल्कुल। इसके ऊपर जब आप ग्राफ्टिंग करेंगे जी। जो हमारा प्रैक्टिस भी है और एक एक्सपीरियंस हुआ है हमारा, इसका जो परसेंटेज है वो 22 से 23 मतलब 21 और 23 के दरमियान माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत मज़ा है जी आपसे गुफ्तगू करके। नाज़रीन बाकी ये सर हम ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज़ है। पूरे पाकिस्तान के जितने भी फार्मर कम्युनिटी है जो भी बंदा है आप लोगों ने ऑलिव लीव्स लेना है जी, उसको खुश करना है लेकिन उसकी सन ड्राइंग नहीं रखे, अच्छा, शेड ड्राइंग आपने उसको खुश करना है, ग्राइंड करना है, उसमें आप इलायची और ये सारी चीज़ें ऐड करके पानी उबालना है, उसी में डालना है और जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं इसी वैसे तरह ही आप, और ये है हर्बल जरूरी चीज, जो जरूरी चीज इसके लिए ये हर्बल। सही सही। अच्छा हजूर, मुझे कुछ और चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं, इन पे भी अगर बात कर लीजिए। जी जी जी। ये अच्छा, ये मैं थोड़ा जी जी ये भी आप लोगों को बता दूं, जी ये जी। हमारे पास आप पूरे केपी में देखें क्योंकि हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट है जी जी, हमारा फोकस है रिसर्च करना सर। तो ये पूरे केपी का पिकान नट का सिलेक्शन है और हम क्या करते हैं कि इन सिलेक्शन की नर्सरी प्रोडक्शन करते हैं और वो पौधे हमने आगे प्रोवाइड करने फार्मर्स को कि आप लोग अपने ज़मीन के ऊपर लगाएं। तो ये पिकान नट है, ये मुख्तलिफ वैरायटी। ये क्यों लगाएं वैसे, आप इसको क्यों रिकमेंड करते हैं, इसकी रीज़न क्या है? सर मैं आपको इसके रीज़न के हवाले से अगर बताता चलूं जी जी, तो आप मोस्टली इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर आप देखते हैं, जैसे मतलब कीवी का अलग होगा, ऑलिव ऑयल का अलग होगा, इसी तरह वालनट और पिकान नट का अलग है ओके। न्यूट्रिशनल वैल्यू मोस्टली आप जिस डॉक्टर के भी पास जाएंगे
जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल का इशू होते हैं उनको डॉक्टर रिकमेंड ही करते हैं कि आपने जो ड्राइड फ्रूट्स है उसमें आपने फोकस करना है, पिकॉन नट एज वेल एज ओह माशाल्लाह, तो मोस्टली उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा perform मुझे करता कीवी का भी कुछ दिखाई दे रहा है जी सर। ये सर वैसे आप आए भी थे जी बिल्कुल मानसेरा में, जी ये हमारा प्रोडक्शन है जो आपने अपना वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड किया था, तो ये अभी हमारा पैकिंग है और हम इसको आगे बेचते हैं। क्या बात है जी। और ये जो प्रोडक्ट है जी PRC नेशनल टी एंड हाई वैल्यू क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट शिंकारी, और ये इसी कीवी फ्रूट का जैम है। ये देखें नाज़रीन, ये भी आप लोग देख सकते हैं। ये देखें नाज़रीन, जी जी, ये कीवी का इन्होंने जैम तैयार किया है, जी, जी, माशाल्लाह सही। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच जनाब। वेलकम और कोई चीज़ दिखाना चाहें मेरे नाज़रीन को? सर मैं एक चीज़ के हवाले से बताता प्लीज़ चलूं। प्लीज़। अच्छा, ये हमारे पास एक, अगर आप देखते हैं इसको लगता तो स्टिंग की तरह ही है, हाँ लेकिन जी। मोस्टली ये स्टिंग नहीं है। अच्छा सही है। हमारे पास एक पौधे, इसको कहते हैं हिबिस्कस प्लांट। अच्छा। रोजेल, रोजेल एक पौधा है। तो जो रोजेल के ड्राइड कैलस है, आपने क्या करना है कि रोजेल का पौधा नवंबर दिसंबर में इसके जो ये कैलसेस है ये ड्राई हो जाते हैं। आपने क्या करना है, इसको आपने कलेक्ट करना है, कलेक्ट करके आपने पानी उबालना है, ठीक है, और उसमें आपने ये पत्ते डालने, और इसका ये कलर जब आएगा तो अगर आप इसको फिर गर्म पिएंगे तो इसको कहते हैं हिबिस्कस टी। अच्छा। आप ठंडा पिएंगे तो इसको कहते हैं हिबिस्कस सिरप। और इसके न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। वो लोग जो कोलेस्ट्रॉल और चर्बी, मैदे के इश्यूज, यूरिक एसिड के, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो ये इनके कैलसेस है और ये फाइनल प्रोडक्ट है। अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं तो मैं आप लोग करेंगे ना जी, चेक भी करवा ये सकता फर्स्ट हम हूं। देखते हैं नाज़रीन कि इसका टेस्ट ये कैसा आप है। लोग check कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, ये देखें जी, माशाल्लाह। ये मैडम ये डिपेंड करते हैं, मैं थोड़ा वीडियो में लिखा हूँ, ये हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसमें वाह माशाल्लाह, हल्का हल्का खट्टा सा भी है। जी 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 बिल्कुल। और ये मैं थोड़ा आप इसका भी लें, ये देखें इसका एक पूरा हमने एक स्टंडी बनाई हुई है जी। हाँ, रोजेल, ये इसको ज़्यादातर लोग जो लोकल लैंग्वेज है उसमें इसको करकदा भी कहते हैं, ठीक है। माशाल्लाह। तो नाज़रीन बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट है। मैं ये नहीं कहता मीठा है, फीका सा टेस्ट है, हल्का सा खट्टा भी है, लेकिन अच्छा इसके अलावा अगर हम इसमें कोई मीठा करने के लिए कुछ डाल सकते हैं? सर वो डिपेंड करता है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको शुगर इश्यूज है। जी जी जी। जिनको शुगर है वो मीठा ऐड ना करें, जिनको नहीं है बेशक ऐड करें। ज़बरदस्त सर, थैंक यू। आप इसमें ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी मेरा नाम मोहम्मद अरशद है और हमारा ताल्लुक ये खैबर पख्तूनख्वा से एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट तरना पेशावर। जी जी। ये जो गाला चल रहा है पाकालियो का, हाँ जी। तो ये पाकालियो का जो है ये केपी कंपोनेंट्स का प्रोजेक्ट भी हमारे पास है, ये प्रमोशन ऑफ आलियो कल्टीवेशन कमर्शियल स्केल। ज़बरदस्त। तो ये हम ज़मींदारों को ये जैतून के पौधे वो जो बागात भी लगाते हैं जी जी केपी के हद हाँ तक, जी हाँ जी, तो वो उसमें से ये 67% रियायत पे लगाते हैं ये जमींदारों को बागात। ग्रेट। ये आप जो ये प्रोडक्ट्स देख रहे हैं तो ये भी उन्हीं जमींदारों की वो जो है ना उनकी मेहनत है। बिल्कुल जी। ये जो एक्सट्रैक्शन, ये हमारे पास जो कूल प्रेस एक्सट्रैक्ट मशीनें हैं उन पे एक्सट्रैक्ट की है हमने वो आलियो का ये ऑयल। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में कौन कौन से एरियाज़ में आप सपोर्ट करते हैं कि आपके इदारे से वो लोग रब्ता करें अगर वो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं? हम जी ओवरऑल केपी में करते हैं तकरीबन, लेकिन ये सिर्फ ये हज़ारा बेल्ट जो है उसके लिए शिंक्यारी में हमारा कंपोनेंट है कि बाकी ओवरऑल केपी में जहाँ से भी वहाँ हमारे तो एग्रीकल्चर ये जो केपी का अपना एक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट है, उनका भी कोई एक प्रोजेक्ट चल रहा है आलियो का, लेकिन ये जो PhD प्रोजेक्ट हमारे पास है ओवरऑल केपी हमारे पास। अच्छा अरशद साहब, कौन कौन सी आपका तजुर्बा क्या कहता है, कौन सी वैरायटी ज़्यादा सक्सेसफुल है केपी में, इसमें जैतून की? सब वेराइटीज़ जी वहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों के, लेकिन आलियो से जो रिलेटेड जो भी वेराइटीज़ हैं ना, हर एक इलाके में एक एक वो हमारे पास जो साइंटिफिक ऑफिसर्स भी हैं वो सर्वे भी करते हैं फिर उस इलाके का, तो सब वेराइटीज़ अवेलेबल है। तो फिर उस इलाके के मुनासिबत से हम वो लोग उसको वेराइटी लगाते हैं। ज़बरदस्त।
تو یہ جو اولیو ہے یہ آپ کی اپنی ایکسٹریکشن مشین ہے؟ اپنی ایکسٹریکشن ہے، اپنی یہ خیبر اپنا فروٹ ہے کی اپنا فروٹ ہے ہماری، یہ اپنا برانڈ ہے کے پی زیتون کا۔ واہ جی واہ۔ اور اگر کوئی خریدنا چاہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ہمارے پاس ترناب فارم پشاور میں یہ ادھر ہمارے ڈسپلے پہ اویلیبل ہوتا ہے۔ اوکے، آن لائن کا؟ آن لائن کا تو ابھی تک سرکاری والا کچھ مشکل کام ہے، لیکن پشاور والوں اگر آپ لینا چاہ رہے ہو تو یہ آپ ان کے آفس میں جائیں تو کہ بہت خوبصورت پیکنگ ہے ماشاءاللہ۔ اور کیا جی، اور یہ بھی آلیو پکل جی۔ واہ گریٹ۔ یہ دیکھیں ناظرین، بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے ادارے اتنا زبردست کام کر رہے ہوں اور پھر وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ آپ کی دہلیز تک پہنچ رہی ہوں۔ یہ آلیو ٹی، یہ گرین ٹی۔ اچھا، یہ آلیو گرین گرین ٹی، صحیح ماشاءاللہ۔ اور کون کون سی ورائٹیز جو ہیں وہ کے پی میں یعنی کچھ نام بتا سکتے ہیں جو؟ ہاں جی، یہ اس کے مختلف وہ نام ہیں، یہ پکول کے لیے جیسے اچار کے لیے یوز ہوتی ہے، کوراٹینا ہے، لیسینو ہے، مختلف ہمارے مختلف علاقے، اربیکوینا بالکل جی، ہمارے مختلف علاقے ہیں، کچھ گرم والے علاقے، کچھ سرد والے، تو ان کے لیے موسم کے حساب سے ویرائٹیز ہیں نا، وہ ساری اویلیبل ہوتی ہے ہمارے اس پروجیکٹ میں، وہ ہم لگاتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ کیا ہے جناب؟ یہ بھی پلاسٹک باٹل میں یہ بھی آئل ہے، ایکسٹرا ورجن، یہی آئل ہے، کلٹیویٹڈ آلیو آئل ہے، یہ پلاسٹک باٹل میں ہے۔ اس کا پروٹوکول تو یہ ہے کہ گلاس باٹل میں، گلاس باٹل پہ خرچہ ہوتا ہے فارمرز کے لیے، وہ تھوڑے سے وہ ہاں، وہ پھر وہ تو باہر جو لوگ خریدتے ہیں نا باہر، تو پھر وہ اکثر کہتے ہیں چلو آپ ہمیں پلاسٹک میں دے دیں، ہم گھر میں گزارا کر لیں گے، گھر میں آپ کوئی گلاس میں شفٹ کر لیں گے۔ اچھا ارشد صاحب، یہ کتنا اس 1 لیٹر ہے؟ یہ 1 لیٹر ہے یہ؟ ہاں، یہ 800 ml 800 ml ہے، وہ 1 لیٹر ہے۔ اس کی پرائس کیا ہے؟ اس کی پرائس جی تو فارمرز کی تو وہ ڈیفرنس ہے نا، اس میں سے یہ کے پی میں 4,500 روپے بھی ہے، 4,000 بھی پر لیٹر ہے، 5,000 بھی ہے۔ ہمارے یہاں پہ گورنمنٹ کے پی کا جو اپنا ریٹ ہے نا پلاسٹک باٹل میں جو ہوتا ہے وہ 3,000 کا بھی اپروڈ ریٹ ہے، وہ سرکاری، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا سرکار کے اس لیول پہ۔ باقی فارمرز وہ انڈیپینڈنٹ ہے، وہ اپنے اس کی جنس کی اپنے وہ طریقے سے، ظاہر بات ان کے اخراجات بھی ہوتے ہیں نا، وہ بھی مسائل ہیں کافی۔ تو حضور میں آپ کے پاس چکر لگاؤں کبھی؟ بالکل جی، تابعدار۔ ایک اچھی سے ناظرین ڈاکومنٹری بنائیں گے آپ کو، جو کے پی میں جو کام ہو رہا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے، ان کے ایکسٹریکشن مشین دکھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ آ جائیے جی، ہمارے پاس ترناب میں بھی باغ ہے اور ایکسٹریکشن مشین ہے۔ دوسرا ہمارا یہ مردان سوابی کے بالکل سنگ مردان کا اینڈ ہے، سوابی کا سٹارٹ ہے سنگ بٹی جی، آلیو ماڈل فارم سنگ بٹی ہے، وہاں پر 177 ایکڑ پہ ہمارا وہ گورنمنٹ کا باغ ہے، تو وہ پورے ویلی ہے، تو اس میں سے تقریباً 13-14 ہزار پلانٹس ہے۔ اچھا، ابھی وہ بالکل میچور بڑے والے، صحیح، تو وہ بھی انشاءاللہ اس پہ بھی آپ ڈاکومنٹری بنائیں ضرور جی۔ میں آؤں ہمارا پورا سیٹ اپ، ہم کے پی کے جو فارمرز ہیں ان کے لیے کچھ کام کرنا چاہیں گے جناب۔ ٹھیک ہے جناب، سر تھینک یو، جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ۔ آگے چلتے ہیں جناب۔ جی ناظرین، اب باری آتی ہے آزاد جموں اینڈ کشمیر کے ڈپارٹمنٹ کی۔ السلام علیکم سر، ٹھیک ہے آپ؟ حضور پہلے اپنے ڈپارٹمنٹ کا تعارف کروائیے گا میرے ناظرین کو۔ یہ سر ایگریکلچر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر جی، وہاں پہ ہم اولیو کے پروجیکٹ جو رن کر رہے ہیں جی، اس کے حوالے سے ہم آئے ہوئے ہیں ادھر اپنی پروڈکٹس ریپرزینٹ کرنے کے لیے ماشاءاللہ۔ اس میں اولیو کی بھی پروڈکٹس اور کچھ وہاں کی اچھا صحیح۔ اولیو سیکٹر میں کس نوعیت کا کام کر رہے ہیں آپ لوگ وہاں پہ؟ جی ابھی تک یہ جو فیڈرل پروجیکٹ ہمارا چل رہا ہے اس کے تحت ہم 1,80,000 پودے لگا چکے پچھلے 2-3 سالوں میں ماشاءاللہ، اور 2 لاکھ سے زیادہ ہم گرافٹنگ کر چکے ہیں، قلم کاری۔ یہ گرافٹنگ کٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، صحیح، یہ ہم فارمرز کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ گرافٹنگ کٹ ہے؟ یہ گرافٹنگ کٹ ہے، اس کی مدد سے ہمارے جو اسکل لیبر ہوتی ہے وہ جا کے ان کو گرافٹ کر کے دیتی ہے۔ اوکے۔ اچھا حضور بتائیے گا کون سی ورائٹیز پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پہ؟ جی ہم نے وہاں پہ کافی ساری ورائٹیز کو گرو کر کے دیکھا ہے، 5-6 ورائٹیز جو اچھی پرفارم کر رہی ہیں وہی ہم وہاں پہ ریکمینڈ کر رہے ہیں، اور انہیں کا ہم لوگوں کو دے رہے ہیں پلانٹس جو فیڈرل پروجیکٹ کے تحت جی وہی پلانٹس لوگوں کو ہم دے رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس کے بعد جو ہماری کچھ پروڈکٹس ہیں دکھائیے گا پلیز۔ پریمیم کوالٹی آئل ہے ہمارا ماشاءاللہ، یہ دیکھیں ناظرین، یہ سر یہ ہمارے اپنے پلانٹ سے نکلا ہوا ہے۔ اچھا، جو مظفر آباد میں آئل ایکسٹریکشن یونٹ لگا ہوا ہے جی، لگ گیا ماشاءاللہ، زبردست۔ اور یہ فروٹ ہمارے آزاد کشمیر جی آزاد کشمیر کا فروٹ ہے، اور آزاد کشمیر کا پریمیم کوالٹی آئل ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں ناظرین، زبردست ماشاءاللہ۔ تو آئل سے ہٹ کے پھر یہ جیم ہے ہمارے پاس، یہ پکل ہیں ڈیفرنٹ، کوئی مسالے والے ہیں، کوئی برائن سولوشن والے، اس ہٹ کے یہ اولیو ٹی ہے،
आप देख सकते हैं। नाज़रीन, ये आज़ाद कश्मीर की ऑलिव टी जी माशाल्लाह। जी ऑलिव टिंचर है। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? लीफ एक्सट्रैक्ट है। अच्छा 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 अच्छा, लीफ एक्सट्रैक्ट है। ये देखें नाज़रीन, इसको अर्क कह सकते हैं ना इसको? जी बिल्कुल सही कह सकते हैं। ये जो है वो पत्तों का अर्क है माशाल्लाह, जबरदस्त। ये ऑलिव शैम्पू है अच्छा, और जबरदस्त। ये मॉइस्चराइजर है ऑलिव का। अच्छा, ये हमारी अपनी प्रोडक्ट्स माशाल्लाह, क्या बात है जी। आपके इदारे का विजिट बनता है ना जी? जी जरूर, है ना जी? वेलकम आप। नाज़रीन, आपको दिखाएंगे जी इंशाल्लाह। मुजफ्फराबाद में है ना आप लोग? जी मुजफ्फराबाद में। सही सही, यू आर मोस्ट वेलकम। जज़ाकल्लाह जी, थैंक यू सो मच, बहुत खुशी हुई। थैंक यू। थैंक यू जी। नाज़रीन अकराम, अब बारी आती है जी ऑलिव कल्चर की। मेरे नाज़रीन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिएगा। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद अरबी अवान है और मेरा ताल्लुक इटालियन ऑलिव कल्चर प्रोजेक्ट से है, जो कि सियाम बारी से मंजूर शुदा प्रोजेक्ट है, इटालियन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेशन से। और हम एज अ काउंटर पार्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी के साथ काम कर रहे हैं 2022 से। हमारा ऑलिव कल्चर 1 था 2022 से 2024 तक। अभी ऑलिव कल्चर स्कैलप जो है 2024 से 2027 तक। हम चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, पॉलिसी डेवलपमेंट है, पॉलिसी हमने ड्राफ्ट की, नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन पॉलिसी, अभी जो प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट डिवीजन में पेंडिंग है अप्रूवल के लिए। इसके बाद हम लेबॉर्ट्रीज हमने एस्टैब्लिश की नेशनल ऑलिव वैल्यू चेन के लिए, क्वालिटी लेबॉर्ट्रीज। फर्स्ट एवर कंट्री सेंसरी लेबॉर्ट्री हमने एस्टैब्लिश की कि आप किस तरह अपने सेंस को यूज़ करके, उसमें डिफरेंट पैनल मेंबर्स होते हैं और वो ऑयल का टेस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ऑलिव ऑयल काउंसिल। उसके बाद हम प्रोविंसेस में फाइटोसैनिटरी लेबॉर्ट्रीज एस्टैब्लिश कर रहे हैं, चकवाल, सी फोर्ट पंजाब में, बलूचिस्तान में, ARI क्वेटा में और ARI तरना पेशावर KP प्रोविंस में। कि वहाँ पे आपके डिजीज़ के जो इश्यूज़ हैं वो आप वहाँ पे ले जाके उनको इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से वो लेबॉर्ट्रीज एस्टैब्लिश हो जाएंगी। इसके बाद हमारा जो मेन पिलर है नर्सरीज को इम्प्रूव करना। हमने फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए ऑलिव नर्सरी सर्टिफिकेशन गाइडलाइंस हमने ड्राफ्ट कर लिए हैं, जो अप्रूव हो चुकी हैं, ताकि वो नर्सरी के कंप्लीट वैल्यू चेन को वो हम एनहेंस कर सकें, ताकि सर्टिफाइड डिजीज़ फ्री प्लांट हम फार्मर्स को प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा जो हमारा मेन पिलर है वो है टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना फार्मर्स को गुड एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस पे, मतलब प्रूनिंग पे, हार्वेस्टिंग पे, प्री एंड पोस्ट हार्वेस्टिंग, मार्केटिंग तक। उसके बाद हम पाक ऑलिव का जो है वो ब्रांड प्रमोट करिए सर। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का ब्रांड है, इटालियन गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन के साथ, और ये फार्मर कंसोर्शियम के थ्रू बना है। बलूचिस्तान के KPK के और पंजाब के जो फार्मर्स हैं उनके जो क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, उनके कंसोर्शियम के, और इंशाल्लाह विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी ये यही पाकिस्तान ऑलिव ऑयल काउंसिल को लीड करेंगे फ्यूचर में, क्योंकि वन ब्रांड वन नेम के थ्रू हम जाएंगे इंशाल्लाह। एक ऑब्जर्वेटरी होगी जो प्राइजेस को वो करेंगी पॉलिसी के थ्रू। और क्रॉस कटिंग में जो प्रोजेक्ट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वुमेन एंड यूथ एक्टिविटीज़। हमने उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की, मटेरियल्स प्रोवाइड की। आप हमारे लेफ्ट पे स्टॉल पे देख सकते हैं कि जो ख़वातीन है बलूचिस्तान के, KPK के, पंजाब के रिमोट एरिया से, उन्होंने डिफरेंट कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स अभी बनाए हैं और अपने लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ओवरऑल सर वैल्यू चेन को हम कवर कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ एंड इटालियन गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के अंडर सर। ज़बरदस्त जी, बहुत खुशी हुई जनाब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और आपके इदारे का हम कभी विजिट भी कर सकते हैं, वहाँ पे आके अब कुछ दिखा भी सकते हैं? बिल्कुल सर, हमारा ऑफिस जो है हेड ऑफिस वो F8 इस्लामाबाद में है। अच्छा। और हम वहाँ पे वहीं से सर हम डिफरेंट प्रोविंसेस में एज अ काउंटर पार्ट जो है उनके साथ हम काम कर रहे हैं सर। ज़बरदस्त। नाज़रीन इंशाल्लाह विजिट करेंगे जी आपके ऑफिस इंशाल्लाह सर। थैंक यू सो मच जनाब। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह।